أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا مؤمن ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آپ سب سامعین کو ایک دفعہ پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ میریکل آف قرآن کی سیریز میں آج ہمارا سیشن نمبر 8 ہے، جو کہ اگر ہم آج اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تک ہم مختلف اسپیکٹ سے یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ کس طرح سے زندہ معجزہ ہے ہمارے لیے، ہم سے گزرے ہوئے پہلے لوگوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی، یعنی کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو اسپیکٹ پچھلی کلاس میں چل رہا تھا وہ تھا انٹرووون سسٹم اینڈ ارینجمنٹس ان دی قرآن پاک، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کا مربوط نظام۔ اور اس میں نے آپ کو جو ہے وہ سورہ آل عمران سے ایک مثال دے کر بتائی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت زکریا والی مثال دے کے بتائی تھی، اور پھر میں نے آپ سے یوسف علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے وہ کس طرح کا اسٹیکلی اور مرر پیراللزم ہمیں اس میں نظر آتا ہے، وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پوری مثال دے کر آپ کو بتایا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن کے رب کے بارے میں علماء کی دو طرح کی رائے ہے۔ ایک علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے مختلف حصوں میں مختلف حکمت موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ لازم ہم اس میں ربط ہی ڈھونڈیں۔ لیکن دوسری رائے میں کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل مربوط نظام ہے، اور اس کے نہ صرف آیتوں میں، نہ صرف الفاظوں میں، صورتوں میں، بلکہ اس پوری کتاب کے شروع سے آخری تک بھی ایک کمپلیٹ انٹر کنیکٹڈ پیٹرن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم انٹر کنیکٹڈ پیٹرن کے اندر ایک سب ٹاپک پڑھ رہے تھے کائزم کا، یعنی کہ مرر پیراللزم کا، تو آئیے چلیے اس کو سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، اس کے اندر بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی میں دیکھا، سورہ یوسف میں دیکھا، اب ہم ایک قرآن پاک کی جو لارجسٹ سورہ ہے اس میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ چلو بھئی آیت الکرسی میں ہو سکتا تھا، سورہ یوسف ہو گئی، لیکن جو اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی صورتیں ہیں اور جو بہت زیادہ آیتیں رکھتی ہیں، تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے اس کو گہرائی سے پڑھا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف ورسز ہیں وہ 286 آیات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جبکہ سب سے لمبی سورت ہے نا قرآن پاک کی، اس کے اندر بھی سیمیٹری موجود ہے، اس کے اندر بھی کائسٹک سیمیٹری موجود ہے۔ اب اس طرح کی جو سیمیٹری ہوتی ہے وہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ کسی بھی اورل ٹریڈیشن میں، ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اورلی جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، اٹس این اورل ٹریڈیشن، جو کہ 23 ایئرس کے عرصے میں سپین پورا جو ہے اس میں نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک ایک دفعہ میں تو نازل نہیں ہوا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تو امی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی سیمیٹری لانا یہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ اب جو سورہ بقرہ کی میں نے آپ سے بات کی ہے، اس کی کائسٹک سیمیٹری جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اے بی سی ڈی، اور پھر بیچ میں جو ہے وہ بی پرائم سی پرائم بی پرائم اے پرائم، اور بیچ میں کوئی سینٹرل پیوٹڈ پوائنٹ ہوتا ہے اے، جس کے ساتھ ساری چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس میں بھی دیکھیے سورہ بقرہ میں، جیسا کہ میں نے آپ کو آیت الکرسی میں سورہ یوسف میں بتایا، اور اب آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے کہ جو سینٹرل ورس ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140،
143, सॉरी माजरत के साथ ये, हाँ हाँ, आयत नंबर 143 जो है वो सूर्य बकरा की सेंट्रल वर्स है। और इसके इर्द गिर्द एक पूरी सिमेट्री बनती है। और अगर आप सूर्य बकरा का बिल्कुल सेंटर निकालें ना, तो आयत नंबर 142 से लेके और 152 तक एक पूरा पिविटेड एंड बनता है, एक पूरा सेंटर बनता है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो पूरी कायस्टिक जो है आपको सिमेट्री नजर आएगी। ठीक है। और फिर बिल्कुल इसके बीच में जो वर्स नंबर 143 है ना, जिसका ये मतलब है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि ये उम्मत वसता है। ठीक है। दिस वर्स इज इन द मिडिल ऑफ द सूर्य बकरा, दैट मुस्लिम्स आर द मिडिल नेशन। तो ये जो सिमेट्री है ये हमें सूर्य बकरा में भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसकी गहराई के साथ जो है वो पढ़ने के लिए बहुत वक्त चाहिए, क्योंकि कुरान की एक बहुत लंबी सूरा है, इसके बहुत से पहलू हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयतल कुर्सी में या किस्सा यूसुफ में या बस छोटी छोटी चीजों में ऐसा है, बल्कि कुरान पाक की बड़ी सूरतों में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है। और पूरी सूरह बकरा इस मरकजी पैगाम के गिर्द घूमती है। इतनी बड़ी सूरत में ऐसी तरतीब किसी इंसानी जहन के लिए बनाना या लेकर आ जाना ये नामुमकिन है। ठीक है। खुसूसन जब कुरान पाक 23 साल के टाइम स्पैन में नाजिल हुआ, और एक जबानी रिवायत है, ओरल ट्रेडिशन है, और फिर हमारे जो नबी थे वो भी उम्मी थे। ठीक है। तो मुख्तलिफ उलमाए कराम जो हैं उनकी मुख्तलिफ राय है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इनकी किताब है, इसमें वो कहते हैं कि सूरतों की शुरू होने में और इख्तिताम होने में भी आपस में एक कनेक्शन है। अच्छा, कभी कभी वो कनेक्शन लिटरल होता है और कभी कभी वो कनेक्शन मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है। कनेक्शन यानी मतलब देखिए, इनके आपस में जो है ना रिलेशन है, कुछ ना कुछ रब्त है। अब ये वाली बात है कि हम तो कुरान पाक को बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, हम मतलब तिलावत कर लेते हैं, या हमने थोड़ा बहुत तर्जुमा पढ़ लिया, तफसीर पढ़ लिया, मगर इसकी जो गहराई है, इसमें जो उलमा गए हैं, और जब हम इसको एजाजुल कुरान के पहलू से देखते हैं ना, तो फिर मीनिंगफुल कनेक्शंस भी नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे इमाम सयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सूर्य अलक को देखें। अब आप, और सूर्य अलक के शुरू में आता है लफ्ज इकरा। ठीक है। और इकरा का क्या मतलब होता है कि पढ़। ठीक है। हम ये बात जानते हैं। अब एक, ये जो एक परा पढ़ने का जो नतीजा है वो क्या होना चाहिए, क्या नतीजा होना चाहिए? व्हाट शुड रीडिंग लीड अस टू, यानी कि जब हम पढ़ें तो इसका नतीजा क्या निकले। और फिर इसी सूर्य अलग के आखिरी में क्या आता है? वस जुदू वक्त करीब, यानी कि सजदा करो, और क्या करो कि अल्लाह के करीब, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाएगी आपको। यानी सजदा करो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। अब इसमें उल्मा फरमाते हैं, इमाम सयूती रहमतुल्लाह, जिन्होंने ये कहा है कि मीनिंगफुल कनेक्शंस भी होते हैं हर सूरत के शुरू में और इख्तिताम पर, और मुख्तलिफ उन्होंने मिसालें दी हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि सूर्य अलग में मीनिंगफुल कनेक्शन क्या बनता है। द रीडिंग एंड नॉलेज मस्ट लीड टू द सबमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये हमारे यहाँ जो मशहूर होता है ना, कि हम लोग कहते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, तो वो कोई ये दुनियावी इल्म की बात नहीं हो रही है। वो बेसिकली दीन के इल्म की बात हो रही होती है, क्योंकि जो आपका इल्म है वो आपको कहाँ लेकर जाएगा? वो आपको लेकर जाएगा अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ। बात समझ आ रही है आप लोगों को? कि यानी अल्लाह ताला का कुर्ब आपको कब हासिल होगा? जब इल्म हासिल होगा। और इल्म जो है वो ऐसा ही इल्म हासिल होना चाहिए, इल्म तभी आपके लिए फायदेमंद है जब वो आपको अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह ताला से मिला दे। ठीक है। व्हेन इट गोज टू टेक यू क्लोजर टू योर लॉर्ड। तो इस तरह के मीनिंगफुल कनेक्शन भी उल्मा ने निकाले हैं कि ये जो सूरा इकरा से स्टार्ट होती है कि पढ़ो, तो फिर इसका जो लास्ट वर्स है, लास्ट हरफ है वसजुदू वक्तरिब, इसका मतलब है टू सबमिट योर सेल्फ टोटली टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और एक इल्म जो सही इल्म होगा वो इंसान को इसकी तरफ लेकर जाता है। तो ये वो कनेक्शन था जो उल्मा निकालते हैं। और फिर अगर इससे थोड़ा सा और गहराई में जाएं, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं इमाम राजी रहमतुल्लाह को, वो कहते हैं इमाम राजी रहमतुल्लाह के जो सूरतें एक दूसरे के आगे और पीछे आती हैं, इनके दरमियान भी एक अजीब सा, एक लतीफ सा कनेक्शन है। अब मैं आपको मिसाल देके बताती हूँ।
आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू कि आप लोग परेशान हो जाएं। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाती हूँ कि पहले तो एक चीज समझें। तो जो सिफात होती है ना किसी की, क्वालिटीज होती हैं, वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है जाती सिर्फ, जिसको हम पर्सनल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी सिफ्त होती है जो दूसरों को फायदा देती है, ठीक है। दो किस्म की सिफात होती हैं। इमाम राजी फरमाते हैं कि एक होती है जाती सिफात जो कि एक पर्सनल चीज होती है, और एक ऐसी सिफात होती है जिससे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अब अगर हम कुरान में देखें तो हमें मालूम है कि सूर्य बनी इसराइल के बाद कौन सी सूरत आती है जिसको सूर्य बनी इसराइल, जिसको सूर्य इसरा भी कहा जाता है। इस सूरत के बाद आती है सूर्य कहफ, ठीक है। सूर्य कहफ आती है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि इमाम राजी फरमाते हैं कि इन दोनों सूरतों में जब हम देखते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व ताला की भी एक जाती सिफ्त है, और फिर इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना व ताला की एक ऐसी सिफ्त भी है जिससे मखलूक को फायदा होता है। एक तो ये, और फिर मजे की बात ये कि फिर यही चीज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मिलती है इन्हीं दो सूरतों में। अब आप ये देखें, मिसाल के तौर पे सबसे पहले सूर्य बनी इसराइल में देखिए, ठीक है। जब हम कहते हैं ना सुबहान अल्लजी, सुबहान अल्लजी, तो जब हम सुबहान कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की जात पर हम दलालत करें, यानी अल्लाह सुबहाना व ताला पाक है, ऐसा है ना। तो ये अल्लाह सुबहाना व ताला की कैसी सिफ्त हुई? ये अल्लाह सुबहाना व ताला की जाती सिफ्त है, ठीक है। पर्सनल एट्रीब्यूट है ये अल्लाह सुबहाना व ताला का पाक होना। और फिर अगर आप सूर्य कहफ में देखें तो सूर्य कहफ में अल्लाह सुबहाना व ताला की जो है वो तारीफ फरमाने के बाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कौन है जिन्होंने क्या किया, कि जिन्होंने अपने बंदे पर उतारी किताब, ठीक है। अब किताब कैसी सिफ्त है? ये किताब उतारना ये तो मखलूक के फायदे के लिए है, तो ये इस सिफ्त का जिक्र हुआ जिससे दूसरों को फायदा हुआ, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, अब इसी के साथ पैरेलल में देखें, इन्हीं दो सूरतों में जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस पर गौर व फिक्र करें तो सूर्य इसरा, जिसको बनी इसराइल कहा जाता है, ठीक है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का जिक्र है, ठीक है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती सिफ्त है कि इनको ऐसा ऊंचा मकाम मिला जो किसी और को नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें क्या जिक्र आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ्त which is just particular for him, which is especially for him and for no one else। तो मेराज तो किसी को नहीं मिली, मेराज का मकाम किसी को नहीं मिला। तो ये इन पर एक जाती, एक पर्सनल फेवर हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, दैट नो वन एल्स हैज एलिवेटेड टू दिस लेवल, ठीक है। एंड देन जब आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य कहफ में अगर आप देखें तो क्या सिफात आती हैं? ये अब वो सिफात हैं कि क्या करें कि आप डराएं और आप बशारत दें, किसको? लोगों को। तो ये कैसी सिफात हैं? ये वो सिफात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे दूसरों को फायदा होगा, ठीक है। ये वाली बात आपको क्लियर हुई कि अगर हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात के लिए देखें या हम नबी करीम के हवाले से देखें तो ये दोनों सूरतें एक दूसरे के आगे पीछे आती हैं, और इसमें किस तरह से कनेक्शन मौजूद है जाती सिफात का और ऐसी सिफात का कि जिनसे दूसरों को फायदा हो, ठीक है। और आगे जाकर और भी मिसालें जो हैं वो कुरान पाक में मौजूद हैं। और इमाम राजी जो हैं वो और भी मिसालों में जिक्र फरमाते हैं। वो ये भी फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरतों की प्लेसमेंट की हुई है कुरान में, ठीक है, ये जो प्लेसमेंट हमें नजर आती है कि कौन सी सूरा किससे पहले आएगी, कौन सी सूरा किसके बाद आएगी, ठीक है। तो वो ये भी फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरतों के इसके अंदर भी एक, इस प्लेसमेंट के अंदर भी एक शान है। यानी ये प्लेसमेंट भी जो है वो रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी अगर रैंडम होता तो जिब्राइल अमीन क्यों आकर फरमाते? यानी कि फिर तो जो नुजूल का ऑर्डर है उसी ऑर्डर से लिख देते, ऑर्डर ऑफ रिविलेशन जो था वही मुसहफ का ऑर्डर होता ना, उसी को सेम सेम रखते। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से क्या हुआ कि सूरतों को एक दूसरे के आगे पीछे प्लेस किया गया। तो ये उलमा फरमाते हैं जिन्होंने डीपर स्टडी किया है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन सूरास। और फिर ये उलमा ये भी कहते हैं कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ कुरान पाक। और इस पे भी काफी स्टडी हुई है कि जो सूरतों की बिगनिंग और एंडिंग है उसमें किस तरह का रब्त मौजूद है। सिर्फ मीनिंगफुल है नहीं,
सिर्फ मीनिंगफुल नहीं बल्कि लिटरल भी है और कहीं कहीं मीनिंगफुल भी है। और कुरान करीम की बिगनिंग और एंड में भी एक सटल किस्म का कनेक्शन मौजूद है। अगर आप लोग इस चीज को इन पैरेलल देखें तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सूरतों की जो मौजूदा तरतीब है ना, ये कोई इत्तेफाकी नहीं है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला से के हुक्म से ही मुकर्रर हुई है, ठीक है। नहीं तो जो तरतीब नुजूल होता वो ही मुसहफ का हमारी तरतीब होती, जो कि नहीं है, ठीक है। अब आप जरा देखें, सूर्य फातिहा में हम कहते हैं रब्बल आलमीन, ठीक है। सूर्य फातिहा में हम क्या कहते हैं? रब्बल आलमीन। और सूर्य नास जो है उसमें भी हम कहते हैं रब्बिन नास, ठीक है। और फिर हम सूर्य फातिहा में कहते हैं मालिक, और सूर्य नास में कहते हैं मलिक, ठीक है। और फिर सूर्य फातिहा में हम कहते हैं ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन। इसकी जो सिमेट्री है, इसका नतीजा है वो क्या है? ये जो ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन हम बोलते हैं ना, इसका नतीजा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इला है कहाँ पर? ये जो इल्लल्लाह का इला है वो आपको कहाँ मिलता है? सूर्य नास में मिलता है। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि हम अ, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, ठीक है। यानी आप ही हमारे इला हैं और आप ही हमारे माबूद हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूरह फातिहा में भी दो किस्म के लोगों का जिक्र है, ठीक है। दो किस्म के लोगों का जिक्र है सूरह फातिहा में भी। दो किस्म के जो है वो बैड इन्फ्लुएंसेस से पनाह मांगी गई है, जिस पर अल्लाह ताला का गजब हुआ, जो कि गुमराह हैं। और इसी तरह जब हम सूरह नास को देखते हैं तो वहां पर भी दो किस्म के बैड इन्फ्लुएंसेस से पनाह मांगी गई है, यानी कि जिनों का, ठीक है ना। और ये जो लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं, जिन। और फिर इंसानों का। तो अब दोनों सूरतों में both the surahs they describe the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala and attributes of certain type of bad influencing people, ठीक है। and both the surahs have prayers to Allah, यानी अल फातिहा जो है वो कलेक्टिव दुआ है, इज्तिमाई दुआ है, जबकि सूरह नास जो है वो इंडिविजुअल दुआ है, इनफरादी दुआ है, ठीक है। अल फातिहा में हिदायत मांगी गई है, जो कि आगे पूरे कुरान में है। यानी हमने हिदायत मांगी और अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में हमें पूरी की पूरी किताब वो हिदायत दी। और सूरह नास में आखिरी में आकर क्या हुआ कि जो हिदायत पर चलने में जो रुकावटें आती हैं, जो मसले मसाइल आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, इससे हम पनाह मांगते हैं, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि सूरह फातिहा इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, ठीक है। जिसने भी सूरह फातिहा की तफसीर को बगौर जायजा लेके पढ़ा होगा, उसको ये मालूम होगा कि उलमा ये फरमाते हैं कि ये जो सेंट्रल वर्ड्स है इया का नअबुदु व इया का नस्तईन, इसके ऊपर तीन आयतें मौजूद हैं, इसके नीचे तीन आयतें मौजूद हैं। और सूरह फातिहा को हम स्प्लिट कर सकते हैं टू हाफ्स में, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो ईया का नाबदू वाला पार्ट है इज द सेंटर। तो व्हाई शुड अल्लाह बी वर्शिप एंड देन द पार्ट आफ्टर इट, क्या कहता है वो कि विच काइंड ऑफ, हम कहते हैं ना कि हमें किस किस्म की गाइडेंस चाहिए। तो अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला से दुआ, और फिर सूरह नास में क्या है कि किससे हम हिफाजत मांग रहे हैं। फिर अगेन अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें, और किस चीज से हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं उसका जिक्र है। बात समझ आई आप लोगों को किस तरह से कुरान की बिगनिंग और एंडिंग में जो है एक रब्त मौजूद है? तो इस तरह इसमें भी उल्मा ने ये कनेक्शन बताया है। थोड़ा गहराई से पढ़ने पर जो है वो ये चीज मालूम होती है, ठीक है। तो दोनों में अल्लाह ताला की सिफात भी बयान हुई, दोनों में दुआ मौजूद है। एक इज्तिमाई सूरत है, एक इनफरादी दुआ है, एक इज्तिमाई दुआ है। फातिहा में हमने हिदायत मांगी, नास में हमने हिदायत पर कायम रहने के लिए शैतान से पनाह मांगी। तो उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पर भी बिगनिंग और एंड ऑफ द कुरान में एक बड़ा ही खूबसूरत जो है वो रब्त मौजूद है, ठीक है। तो देखें, हमें ये जो हमारे सारे सेशंस हम पढ़ते चले आ रहे हैं ना, इससे हमें क्या बात बात मालूम होती है कि द इंटायर कुरान इट हैज अ ब्यूटीफुल अनमैच्ड पैटर्न्स एंड द क्वालिटी अनलाइक एनी अदर बुक ऑफ द ट्रेडिशंस और एनी ट्रेडिशन, ठीक है। हमने देखा कि कुरान में जगह जगह कायज़म मौजूद है, कहीं पर आयत के लेवल पर है, ठीक है।
लाइक आयतल कुर्सी, ठीक है, कहीं पर सूरत के लेवल पे है लाइक सूरह यूसुफ, ठीक है, पूरा सूरह यूसुफ अलैहि सलाम वाली जो किस्सा है। और कहीं कहीं पर हम पूरा एक मरबूत निजाम देखते हैं सूरतों के बीच में और पूरे कुरान में भी। तो ये जो है ये वो उलमा की सेकंड वाली राय थी, उलमा की, जो मैंने आपको बताई थी ना कि कुछ उलमा ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कुरान के अंदर मुकम्मल अरेंजमेंट एंड पैटर्न है। अच्छा, आप कुरान पाक के अगले मिरेकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कुरान पाक का अददी एजाज, ठीक है, यानी मिरेकल नंबर 11, न्यूमेरिकल मिरेकल ऑफ द कुरान पाक। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी और कुछ चीजें इनसे आपको केयरफुल रहने के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगी, जो उल्मा से सुना है और जो पढ़ा है, जो उल्मा, ठीक है, कि किन चीजों से हमें जो है वो यहाँ पर अददी एजाज वाले मुआवजे में केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए, जिस वक्त में कुरान पाक नाजिल हो रहा था, पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि वो बुक फॉर्म में मुदव्वन नहीं था, और ना तो इस वक्त कोई डेटाबेस था, ना ही इस वक्त कोई सर्च इंजन था कि जिसके जरिए ट्रैक रखा जाए, ठीक है ना, क्या चीज जो है वो क्या चीज किस तरह आई होगी, कौन सा लफ्ज कितनी दफा आया होगा, कहाँ कहाँ किस तरह आया होगा, कौन सा लफ्ज कुरान में कितनी बार आया है, ये इस वक्त ट्रैक रखना बिल्कुल नामुमकिन था। और क्योंकि कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ था, और इसी वक्त में कोई जो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, ना ही कोई एआई की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, कोई सर्च इंजन जो है वो मौजूद नहीं थे। तो इट वाज बेसिकली इन ओरल ट्रेडिशन। मैं आप लोगों को ये बात बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये हमारी अक्ल सलीम को उजागर करती है ये चीज, कि एक चीज जो 23 साल के अरसे में अलग अलग मकामात पर अलग अलग वाकयात और इवेंट्स की को मद्देनजर रखते हुए जो 23 साल के स्पैन में नाजिल हुई हुई चीज है, और अब हम लोग जब इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें बहुत सारा इस तरह का मटेरियल मिलता है। शायद आपकी नजर से भी गुजरा हो कि कुरान में कभी कभी मुतजाद किस्म के जो अल्फाज हैं वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आप देखें कि आखिरत का जिक्र और दुनिया का जिक्र 115 बार आया है, ठीक है, फरिश्तों का जिक्र और शयातीन का जिक्र 88 टाइम्स आया है, मौत का जिक्र और हयात का जिक्र 145 टाइम्स आया है, ठीक है, और फिर अल सय्यात यानी बुराइयां और अल सोलिहात यानी नेकियां और अच्छाइयां, इनका जिक्र 167 टाइम्स आया है, ठीक है। यानी जो हम सीख करते हैं ना, रिफ्यूज फ्रॉम इबलीस, एंड इबलीस का जिक्र बाय नेम जो है वो 11 टाइम्स कुरान पाक में आया है। इसके अलावा भी आपको बहुत सी और मिसालें मिलेंगी, कुछ आपको कहीं मिलेंगी, कुछ आपको कहीं मिलेंगी, कुछ में आपको हो सकता है कि कहीं आप जिन इंजन सर्च इंजन से सर्च करें आपको फर्क भी मिल जाए, वल्लाहु आलम, ठीक है। और इसी तरह लफ्ज महीना जो है वो कुरान में 12 दफा आया है, ठीक है, जिन लोगों ने रिसर्च की है इनके मुताबिक। और ये जो वर्ल्ड समंदर है, बाहर जो है सी, ये 32 टाइम्स जो है कुरान में आया है, ठीक है, और 45 जगहों पे ये मेंशन है, जिसका टोटल जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वो 71% बनता है, ठीक है। और जो आपका लैंड है वो 13 टाइम्स आया है, और 45 मकामात पर मेंशन है, तो इसका जो टोटल परसेंटेज है वो 29% बनता है, ठीक है। एंड ये जो रेशो है ना बाहर और अर्थ का, अगर हम इसको निकालें तो दिस रेशियो अलाइंस विद द एक्चुअल सरफेस कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, जिसको हम कहते हैं ना कि जमीन जो है वो 29% लैंड और 71% जो है वो वाटर है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर कुरान में जितनी बार ये अल्फाज आए इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो वो एक्चुअली अलाइन करता है इस एक्चुअल सरफेस कंपोजिशन की रेशो से, वल्लाहु आलम, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी पहले सुना होगा, ये चीजें आती हैं, और इसमें ना पहले एक चीज मैं यहाँ पर आपको वाजे कर दूं कि देखें कुछ उलमा इस बारे में ये कहते हैं कि रिलेटिवली कॉन्टेम्पररी बातें जो हैं वो कुरान में हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर का दौर आया तो फिर इसके बाद ये कनेक्शंस को, इन कैलकुलेशंस को करना आसान हो गया कि कौन सा लफ्ज कितनी दफा आया और कौन सा लफ्ज कितनी दफा नहीं आया, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एनालिसिस से ये इजी हो जाता है। अच्छा, और इसमें बाज उलमा फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा भी किया गया है कि यानी ये जो नंबर बराबर करने के लिए ना यूनिफॉर्म प्रिंसिपल में ही रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, योम जो लफ्ज है
जिसको दिन कहते हैं, यौम के बारे में जो आता है कि 365 डेज जो हमारे साल के होते हैं, तो उसमें यौम और अल यौमन जो लफ्ज है इसको काउंट किया गया है, लेकिन यौमकुम और यौमहा और यौमहुम और यौमाइजिन, इन अल्फाजों को इस यौम के साथ काउंट नहीं किया गया। वल्लाहु आलम। ठीक है ना। तो ये बड़ी बारीकियां हैं कुरान पाक की। ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो इस वजह से वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है। और इसकी मैं आपको एक वजह बताने लगी हूँ कि वाई शुड वी बी मोर केयरफुल अबाउट इट। अच्छा, ये मैं आपको आखिरी आखिरी में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक अहम वाकया बताना चाहती हूँ। हो सकता है आप में से किसी ने पहले से सुना हुआ हो, मगर जिसने नहीं सुना इनके लिए भी जरूरी है। तो सब जरा बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा, ताकि आपको एक बहुत ही अहम चीज पता हो, ये न्यूमेरिकल फाइंडिंग्स ऑफ द कुरान के बारे में। एक फाइंडिंग है रिलेटेड टू नंबर 19। ठीक है। सूरह अल मुदस्सिर की आयत मुबारका है, जिसमें आता है अलैहा तिस आता अशरा। ठीक है, यानी देयर आर 19 इन चार्ज ऑफ इट। यहाँ पर जहन्नुम की बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में, कि जहन्नुम पर अल्लाह ताला ने 19 निगरान फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, यानी 19 दारोगा हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है जबानिया, और जो इनके इंचार्ज फरिश्ते हैं इनका नाम मालिक है। अच्छा, इनको कहा जाता है जबानिया। ठीक है। तो यानी देखिए, इसका जिक्र करने के बाद, जहन्नुम का जिक्र करने के बाद, जहन्नुम पर 19 दारोगा हैं, इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वी मेड दिस नंबर अ टेस्ट फॉर द डिसबिलीवर्स। कुफार के लिए ये 19 का जो नंबर है एक आजमाइश है, और मोमिनीन और अहले किताब के ईमान में इससे इजाफा होता है। अब आप देखें, अब मोमिनीन और अहले किताब के ईमान में तो इसलिए भी इजाफा होता है कि हम लोग तो, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं समीअना व अताअना। यानी मोमिनीन और अहले किताब के ईमान में तो इसलिए भी इजाफा होता है कि हम लोग तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो फरमाते हैं हम इसे मानते हैं, और हमारा तो ईमान और बढ़ता है कि अल्लाह ताला ने जो बताया है वही चीज हक है। और अहले किताब का जहां तक जिक्र है, तो इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हमें तो मालूम है कि बहुत ज्यादा तहरीफ जो है वो हो चुकी है, बाइबल में भी तौरात में भी। बट ऑब्वियसली ये जो फरिश्तों का नंबर है, वो इनकी किताब में कहीं ना कहीं इसका जिक्र है, या इसकी खबर इनको थी कि जहन्नुम पर दारोगा होंगे, फरिश्ते होंगे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये तो फरमा दिया। मगर साथ में अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जिनके दिल में मर्ज है, यानी कि मुनाफिकीन हैं, काफिर हैं, कुफार वगैरह हैं, मुशरिकीन हैं, वो कहेंगे कि इस मिसाल से क्या मुराद है। और अल्लाह ताला फिर आगे ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं गुमराह करते हैं, और जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। और ये जो आयत मुबारका है ना, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा पस मंजर बताया है, इसमें जो है ना, कुफार ने जब ये आयत सुनी, तो इसमें जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये कुफार के लिए एक आजमाइश है, तो उन्होंने किस्म किस्म की फजूल बातें करना शुरू कर दी। जैसे अबू जहल ने जो है ना वो फजूल बातें की कि बस 19, ये तो कोई मसला ही नहीं है, बस 19 दारोगा होंगे। और एक इनका बड़ा कोई ताकतवर किस्म का, पहलवान किस्म का एक कुफार था, इसने भी कहा कि 19, बस 19 दारोगा, ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है, 17 18 को तो मैं संभाल लूंगा, एक दो को तुम संभाल लेना। तो इस तरह की ऑल फॉल बातें उन्होंने जो है वो यहाँ कही। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ रही है जो मैं आपको पूरा पस मंजर बता रही हूँ इस आयत के हवाले से आपको? ठीक है। इससे रिलेटेड अभी एक बात बताने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है। हुआ ये कि एक शख्स था जिसका नाम था रशाद खलीफा। ठीक है। ही वॉज बेसिकली अ बेहाई। ही वॉज फ्रॉम इजिप्ट। ही वॉज ऑल्सो अ केमिस्ट, बट ही यूज टू लिव इन अमेरिका। मगर लोगों को ये मालूम नहीं था कि वो बिहाई फेथ पर ईमान रखता है। अब जो बिहाई फेथ है उसके अंदर ये जो नंबर 19 है, इट इज कंसिडर्ड एज अ सीक्रेट नंबर। ठीक है। अब इसका ये बैकग्राउंड किसी को मालूम था ही नहीं, बट व्हाट ही डिड वाज ही केम अप विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंट्रिकेट पैटर्न सराउंडिंग नंबर 19 इन कुरान। ठीक है।
اور وہ اتنا حیران کن اور مائنڈ بوگلنگ ہے، یعنی کہ بہت سے جو علماء ہیں انہوں نے بھی کوٹ کیا تھا اور کوٹ کرنا شروع کیا ہی تھا۔ مثال کے طور پر یہ جو رشاد خلیفہ تھا، اس نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں 19 حروف ہیں، اور اس میں سے ہر حرف 19 کے ملٹیپلز میں قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ میں خود 19 لیٹرز ہیں اور ہر ورڈ 19 کے ملٹیپلز میں قرآن میں آیا ہے۔ اور 19 نمبر از بیسیکلی جو ہے وہ اٹ از اے پرائم نمبر، اور اس کے ملٹیپلز کا ہونا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس شخص نے یہ بھی کہا کہ جن صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں ان کا ہر انڈیویجول لیٹر اس صورت کے اندر جتنی دفعہ آیا ہے اگر آپ ان کو جمع کریں تو وہ بھی 19 کا ملٹیپل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ اور بھی سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے پورا۔ جب میں آپ لوگوں کے لیے یہ کورس جب ہم نے اپنی اساتذہ سے پڑھا تھا، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو اس کورس کو اعجاز القرآن کو پڑھنے کے ڈفرینٹ جو ہے وہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو چارٹس ہیں وہ ایک بک میں اس کے یہ جو پورے قرآن کے عددی اعجاز ہیں نا، ان کے چارٹس موجود ہیں، اور وہ اتنے کمپلیکیٹڈ پیٹرن ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھیوری بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی نا، اور اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ کچھ علماء نے بھی اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر آخری میں کیا ہوا اس کے ساتھ، اب یہ جو رشاد خلیفہ ہے اس نے پھر عجیب عجیب باتیں بھی کی۔ ایک تو اس نے کہا کہ میرا نام بھی قرآن میں 19 بار آیا ہے، پھر اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، توبہ نعوذ باللہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ساتھ ہی کیا کیا کہ اس نے کہا کہ سورہ توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان دو آیات سے قرآن کا میتھمیٹیکل کوڈ خراب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث اور سنت کا بھی جو ہے وہ اس نے انکار کیا۔ سو واٹ ہیپنڈ واز ایونچولی دس پرسن واز killed by someone in America. So what he has done was he said that I had discovered the brilliant number 19 pattern in the entire Quran. But then he went on from there. اور پھر وہ نعوذ باللہ بہت ہی حد سے آگے بڑھ گیا، اور پھر اس کے اندر وہ اتنا زیادہ حد سے آگے بڑھ گیا کہ نعوذ باللہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ اب میں نے آپ کو یہ بات کیوں بتائی؟ پہلی بات، آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں کوئی انٹریکیٹڈ میتھمیٹیکل کوڈ ہونا بالکل ممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کیونکہ اس کے بارے اس کے جو ہر پہلو میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں معجزہ ہے، تو بالکل ممکن ہے کہ قرآن کے اندر کوئی بہت ہی زبردست قسم کا یا ایکسٹرا آرڈینری قسم کا کوئی میتھمیٹیکل کوڈ ہو، مگر بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کوڈ کا پتہ چلے، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم خود سے کہیں کہ ہم نے فلاں پیٹرن ڈسکور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پیٹرن کے ڈسٹرپٹ ہونے کی وجہ سے میں فلاں چیز کو اگنور کر دوں گا، یا فلاں سورہ کی جو یہ والی آیت ہے وہ ہم قرآن میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس کے شامل ہونے سے ہمارا میتھمیٹیکل کوڈ یا پیٹرن خراب ہو رہا ہے۔ تو یعنی دیکھیں، قرآن میں توبہ نعوذ باللہ تحریف کے لیول تک کوئی پہنچ جائے تو بات سمجھنے کی یہ ہے، دیکھیں ہمیں غیر مسلمز کو امپریس کرنے کے لیے یا خود اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نیومیریکل میریکلز کا محتاج نہیں ہے، قرآن سائنٹیفک میریکلز کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ اے آئی کا دور ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ویڈیو یا آڈیو ریئل بھی ہے یا نہیں ہے، کون سی نیوز سچ ہے کون سی فیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اے آئی کے زمانے میں کوئی تحریر نکالے یا کوئی تحریر نکالے اور کہے کہ یہ دیکھیں میں نے اس تحریر میں ایک ہی لفظ برابر استعمال کیا ہے، تو توبہ نعوذ باللہ، ہم کیا اس تحریر کو قرآن کے بالمقابل لائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اصل میں یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ ون شوڈ بی ویری ویری کیئرفل، وی شوڈ ناٹ گیٹ کیریڈ اوے، ٹھیک ہے۔ ہم آلریڈی اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ کی کتاب ہے، ہم پہلے ہی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ We do not need to prove ourselves or to prove the book of Allah. The book of Allah جو ہے speaks for itself. تو ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کھینچا تانی نہیں کریں کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ یہ والی سائنس کی تھیوری نکالی ہے، یا یہ والا نمبر پیٹرن نکال لیا، یا یہ جس رب کا کلام ہے، اس رب نے پورے یونیورس میں
इंतहाई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल सिस्टम्स ऑलरेडी रखे हैं जो कि ऑलरेडी एक्यूरेटली अलाइन है। तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई मैथमेटिकल कोडिंग या न्यूमेरिकल मेरिकल नहीं है जिसको कोई भी कॉपी ना कर सके, और ना हम खुद से कोई ऐसा सिस्टम क्लेम कर सकते हैं जिसको साबित करने के लिए हम शरीयत के खिलाफ कोई भी पॉइंट निकालें। बात समझ में आई ये वाली आप लोगों को? ये क्लियर हो गया आप लोगों का कॉन्सेप्ट? प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई है तो अब दूसरी वाली बात सुने कि हाँ, अलबत्ता अपनी डीपर ऑब्जर्वेशन से बगैर खयानत किए हुए कोई अददी चीज कोई आलिम या उलमा जिक्र अगर करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि अगर कोई बहुत गहराई से इसकी तालीम हासिल करता है, इसकी डीपर स्टडी करता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छी नीयत के साथ, बगैर किसी खयानत के किए हुए, जो ऑथेंटिक उलमा है, अगर वो किसी चीज का जिक्र कर दें, कोई न्यूमेरिकल ब्यूटी का जिक्र कर दें, तो उसमें कोई हर्ज अलबत्ता नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सूरा अल कौसर, अगर आप इसको डीपर स्टडी करें तो एन अमेजिंग नंबर पैटर्न इन सूरा अल कौसर, ठीक है। सूरा अल कौसर में एक बड़ा ही अमेजिंग नंबर पैटर्न मौजूद है। अगर आप इसकी उलमा की जो स्टडी है इसको आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। जो उल्मा बताते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सूरे कौसर के अंदर कितनी आयत हैं? 3 आयत हैं। अल कौसर खुद भी जो लफ्ज है अरबी में, इसमें 6 हरूफ हैं जो कि खुद भी मल्टीपल है 3 का। सूरे नंबर भी जो है ये सूरा नंबर जो है ये 108 है जो कि मल्टीपल है 3 का, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ रिविलीशन है यानी जो इसके नुजूल का ऑर्डर है, तो इसमें ये सूरा नंबर 81 है जो कि फिर से मल्टीपल है 3 का। The total number of Arabic letters in the surah is 42, which is also a multiple of 3. The number of verses in the surah is 3. ठीक है। फिर जो पहली आयत है इसमें 15 हरूफ आते हैं, फिर सेकेंड आयत है, ठीक है, इसमें 12 हरूफ आते हैं, और फिर जो तीसरी आयत है इसमें 15 हरूफ आते हैं। ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक इसके बारे में बस बताया है, वरना इसका पूरा का पूरा एक कोर्स होता है एजाजुल कुरान नाम का, और उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड फाइंडिंग्स हैं जो हमारे उलमाए कराम ने की हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ सूरह कौसर है ना जो जिसको हम सुनते हैं और हम जानते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। और भी बहुत सारी सारी इन मल्टीपल्स के 3 के और जो है वो किस किस दौर से किस तरीके से चीजें निकाली गई हैं कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। तो बहरहाल कुरान जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है। इसके जो सारे मौजूजात हैं ना तो हम इसका शुमार कर सकते हैं और ना ही हम इनका इहाता कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ही बेहतर जानने वाले हैं। अच्छा, अब हम कुरान पाक को हक मानते हैं क्योंकि इसका इन दल्लाह होना हमारे सच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है और हमारे लिए यही काफी है। मगर हम देखते हैं कि सही बुखारी की हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान के मौजज़ा होने के बारे में क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मफ़हूम बता रही हूँ मैं आपको, कि हर नबी को ऐसे मौजज़ात दिए गए जिनकी वजह से लोग ईमान लाए, जबकि मुझे सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह की वही यानी कुरान पाक अता किया गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कयामत तक के दिन मेरे पैरोकार सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4981 है। अच्छा, अब इसमें अजीब बात यह है कि इस हदीस मुबारका में देखें, वही जो है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले अंबिया पर भी आती थी, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। मगर दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान के अलावा, हमने शुरू शुरू की क्लासेस में पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ कुरान मौजूदा नहीं था बल्कि और भी बहुत से मौजूदात थे। मगर खास कुरान का जिक्र ही क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअज्जा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स इटर्नल एंड टाइमलेस, ठीक है। और इसी वजह से और इसीलिए इस हदीस मुबारका में आगे क्या फरमाया गया है इसलिए मुझे उम्मीद है कि कयामत के दिन मेरे पैरोकार सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुअज्जा है जो कयामत तक रहना है। इसने हर जमाने में लोगों को आजिज कर रखा रखा है।
और एक ऐसा मौजज़ा है। और दूसरा मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुरान पाक ने सब जिन्नो इंस को चैलेंज किया कि इस जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ। अच्छा, आपको पता है कि कुछ बेवकूफों ने, कुछ बेवकूफ किस्म के लोग थे, उन्होंने कुछ जो है वो भौंडी किस्म की कोशिश की। मतलब एक शख्स था, इसने बना दिया इस तरह के अलफील मलफील वमा अदराका मलफील, नाउजुबिल्ला। तो इसने भी किया था, मुसैलिमा कजाब ने भी एक कोशिश की थी, ठीक है। और इतना अरब के लोग इन पर हंसे, इतना हंसे कि यानी जिसकी कोई हद नहीं है, और खूब मजाक उड़ाया कि ये क्या चीज बना कर ले आए। तो मजाक के तौर पर लोगों ने कोट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल मिरेकल ऑफ कुरान है ना, लोग इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मजाक करने लगे थे उस दौर में। मगर कुरान का मौजज़ा होने की एक अहम तरीन जो शिक है, जो अभी भी कायम है, वो क्या है? वो है कुरान का चैलेंज। कुरान का जो चैलेंज है, इट स्टिल स्टैंड्स एंड इट विल स्टैंड टिल द डे ऑफ कयामत। और ना सिर्फ ये कि कायम व दायम है, बल्कि इसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक स्टैंप भी लगा दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं सूरे बकरा में, वर्स नंबर 23 में, कि मैं आपको ट्रांसलेशन बता रही हूँ कि अगर तुम इस कुरान के बारे में शक में हो तो इस जैसी एक सूरत ले आओ, ठीक है ना। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, ठीक है, कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है, अगर तुम ऐसा ना कर सके और हरगिज ना कर सकोगे। बात समझ आ रही है? यानी कि तो फिर क्या है कि जब नहीं कर सकते यानी इस जैसा कलाम नहीं ला सकते और हरगिज ना ला सकोगे, तो क्या है, देखें, जब भी जो भी अगर थोड़ा बहुत अरबिक जानते हैं उनको मालूम होगा कि लन जब आता है ना अरबिक में, तो ये बहुत शदीद निगेशन के लिए होता है, ठीक है ना। तो फिर जब अल्लाह सुब्हानहू व ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा ना कर सके और हरगिज ना कर सकोगे, तो फिर क्या, देन बी अवेयर ऑफ द फायर प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। whose food is men's and stone, यानी कि फिर उस आग के लिए तैयार हो जाएं ऐसे ना मानने वाले जिनका ईंधन क्या है, इंसान और पत्थर है। तौबा नाउजुबिल्लाह, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट, ठीक है, फरमा दिया, यानी कि ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन क्या है, इंसान और पत्थर है। किसकी मजाल और हिम्मत नहीं है कि कभी भी इस मुआवजे को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस मुआवजे को डिस्प्रूव कर सके। तो अभी तक हमने क्या देखा सेशंस में, और हमने क्या चीजें देखी कि ये जो कुरान पाक है, द कुरान इज नॉट ओनली अ बुक ऑफ डिवाइन रिविलेशन बट अ प्रोफाउंड मास्टरपीस दैट कैप्टिवेट द हार्ट्स, द सोल्स एंड द माइंड्स, ठीक है। ना सिर्फ इसमें स्पिरिचुअल गाइडेंस है, बट इसके अंदर एक अनपैरेलल ब्यूटी है, इसके रिसिटेशन में, इसकी ग्रामर में, इसकी लैंग्वेज में, इसके रिटोरिक में, इसके लिटरेरी स्टाइल में, एंड इट सर्व एज अ कंप्लीट गाइड टू लाइफ एज वेल, ठीक है। आपको पूरा कंप्लीट मोरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कहीं पर जो है वो किस्से आ रहे हैं, कहीं पे सबक आ रहे हैं, सिंप्लिसिटी भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, इंटेलेक्ट को भी सटिएट करता है। एंड द वर्सेस दे रेंज फ्रॉम शॉक पावरफुल स्टेटमेंट्स टू लॉन्ग इंट्रिकेट पैसेजेस, ठीक है। इट हैव मेटाफर्स, इट हैव सिमिलीज, इसमें तरगीब है, इसमें तलहीद है, और असर ऐसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि एट वन पॉइंट इन द टाइम the Quraysh were forced to give out cotton to people to plug their ears, यानी वो कहते थे कानों में रुइयां ठूस लो। बाकायदा कानों में रुई ठूसने के लिए कुरैश वाले जो है वो दिया करते थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये कलाम को सुनकर लोग ईमान ले आए, ठीक है। तो बस बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई कहता है कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन टाइमलेस, इसके यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो है और इसके टाइमलेस होने में खूबसूरती है। कोई कहता है इसकी फसाहत और बलागत जो है वो बड़ी बाकमाल है। कोई कहता है इसकी तासीर बेमिसाल है। साफ बात यह है कि हम इसके जो मौजज़ात हैं,
ہم اس کا احاطہ کرنے سے بھی عاجز ہیں، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ ہم لوگوں نے ان 8 سیشنز میں کیا چیزیں دیکھیں؟ ہم نے تاریخی حقائق دیکھے، ہسٹوریسٹی، پھر ہم نے مغیبات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، دا پریڈکشنز اینڈ دا انسین، پھر ہم نے تاثیر قرآن کو دیکھا، اٹس میسمرائزنگ پاور، پھر ہم نے اس کی تکرار اور ہر بار جو اس میں ایک نیا پن موجود ہے کہ پڑھ پڑھ کر بھی انسان بور نہیں ہوتا، اکتاتا نہیں ہے، ایک بار مکمل کرتا ہے پھر دوبارہ پڑھتا ہے، اس کے ان ایگزاسٹیبل اینگلز کو ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اٹس پروٹیکشن، اٹس پریزرویشن۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا حفظ جو ہے وہ خود بھی ایک معجزہ ہے، کہ ایک ایسا شخص جس کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا وہ بھی اس کو میمورائز کرتا ہے، اور پھر ایسے لوگ جن کو عربی آتی ہے ان کی تو کیا بات ہے، یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ کیونکہ وہ امی ہیں، لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایک ایسے نبی پہ ان لیٹرڈ پروفٹ پر اس کا ریویل ہونا۔ پھر ہم نے اس کے اسلوب بیان کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھا، اس کے لنگوسٹک میریکلز کو، اور پھر ہم نے اس کے مربوط نظام کو دیکھا، اٹس انٹرکنیکشنز اینڈ پیٹرنز، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو ہے وہ ہم نے آخری میں معجزات عددی کی بات کی، نیومیریکل میریکلز اینڈ بیوٹی آف دا قرآن، جو کہ یہ بڑا، میں نے آپ سے یوں سمجھ لیں کہ بالکل سرفیس ٹچ کیا ہے، ذرا 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 سی مثالوں کے ساتھ، بڑا کم میں نے آپ کو اس میں جو ہے نا، میرا خیال ہے 0.0001% بھی شاید میں نے کچھ نہیں بتایا، اور بس میں ایک سرفیس کو ٹچ کرواتی ہوئی جو ہے اس سیشن میں آپ کو لے کر آئی ہوں۔ اور پھر آخری میں یہ بھی بتایا کہ چیلنج اس کا برقرار ہے، اور چیلنج ہمیشہ برقرار رہے گا۔ نو ون کین چینج اٹ بٹ اٹ کین چینج ایوری ون، ٹھیک ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے سے بھی عاجز ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم پر ضروری کیا ہے کہ ہم کم از کم سب سے پہلے کیا حق ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، اپنی تجوید کو بہتر کریں، پھر ہم اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کو اوتھینٹک سورسز سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اس پر عمل کریں، کیونکہ اہم ترین کام کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ عمل جو ہے نا وہ سب سے ضروری، سب سے ضروری عمل نکلے گا تو آخرت بنے گی، اور مزید ہمت ہو تو عربی سیکھیں اور پھر اس کی گہرائیوں میں اتریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام شافی رحمت اللہ جو ہیں، ان کی ایک دیوان شافی ہے، ان کے جو اشعار ہیں اس کتاب میں اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو امام شافی رحمت اللہ نے ایک شعر جو کہ ان کا بہت ہی آپ کہہ لیں کہ انسپریشنل ہے، وہ فرماتے ہیں امام شافی: اما ترا البحر تلا فوقه جیتو وتستقر باقصاک فی الدورا۔ کیا مطلب ہوا اس شعر کا، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتی ہوں۔ امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سمندر کے اوپر لاشیں تیرتی ہیں؟ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی چیز سمندر کے اندر جاتی ہے تو پھر وہ اوپر آ جاتی ہے، جو لاش وغیرہ ہوتی ہے نا، ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، وہ اوپر کی طرف آ جاتی ہیں، مگر پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ موتی کی جو قرار گاہ ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہے، یعنی موتی جو ہے وہ آپ کو اوپر تیرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی تیرتے ہوئے ملتے ہیں نا، اور موتی تو سمندر کی تہ کے اندر ہوتے ہیں، گہری جگہ پر ہوتے ہیں، اور وہاں سے نکالنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ایسنس یہاں پہ کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں عام چیزوں کے بارے میں ہے کہ اوپر اوپر سرسری طرف جو چیزیں ہیں وہ ہر چیز آپ کو سرسری اوپر مل جائے گی، مگر if you really want to get the true feeling out of something then you have to dive deeper into it، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک کی تو سرفیس بھی بہت پیاری ہے اور اس کی ڈیپتھ بھی بہت پیاری ہے، تو جو سرفیس پہ تیر سکتا ہے وہ سرفیس سے موتی چن لے، اور جو ڈیپر جا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈیپر جائے، گہرائی میں جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک اور بات امام غزالی رحمت اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے، وہ فرماتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں
کہ دا ہولی قرآن از این اوشن، ٹھیک ہے، قرآن ایک سمندر ہے. وائی ڈو یو واک آن دا شور ٹو کلیکٹ دا شیل، تم ساحل پر سیپیاں کیوں چن رہے ہو، ٹھیک ہے. ڈائیو ڈیپر انٹو اٹ ٹو کلیکٹ اٹ پرلز، اس کے موتی حاصل کرنے کے لیے اس کی گہرائی میں اترو، ٹھیک ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ شیلز کہاں ہوتے ہیں؟ کنارے پہ ہوتے ہیں نا، اوپر، جہاں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے. جبکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کیوں نہ آپ اس کے موتی نکالیں، اور موتی کہاں ہوتے ہیں؟ وہ گہرائیوں میں ہوتے ہیں. اور اگر اس کے موتی نکالنے ہیں تو تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا اس میں اندر جائیں، تھوڑا اس کو سمجھیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ پاک نے جس زبان میں یہ کتاب اتاری، جس زبان میں حدیث مبارکہ ہیں، جس زبان میں ہمیں پوری جو انیشیل جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا اسلاف ہے ان کی کتب ہیں، پوری جو ہمارا لٹریچر ہے، پورا کا پورا جو اثاثہ ہے ہمارا، وہ عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا واٹ از یور نیشنل لینگویج یا مدر لینگویج، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارے اماں کی جو لینگویج ہے، ہمارے جو اماں کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہے. تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر اس نیت سے بھی ہم سیکھیں کہ یا اللہ ہم عربی اس وجہ سے سننا سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی کتاب کے اندر گہرائی میں جا سکیں. یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ حدیث مبارکہ فرسٹ ہینڈ نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام آپس میں کیسے بولتے تھے، کیا زبان ہوتی تھی، کیسے بات کرتے تھے، وہ مزہ آپ کو عربی میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے. اور قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں اور اس زبان میں اللہ پاک نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ یہ جو لوگ درس نظامی اور عالمہ پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں جو پانچواں چھٹا سال ہوتا ہے، دورہ حدیث ہوتا ہے، پانچویں چھٹے سال میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ پڑھائی جاتی ہے. تو آپ یقین جانیں کہ جب آپ وہ حدیث مبارکہ سنتے ہیں نا مفتیان کے ذریعے، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اسی دور میں پہنچ گئے ہیں، اسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بات آپس میں وہ لوگ کر رہے ہیں. اور پھر صحابہ کرام نے کیا جواب دیا، اور پھر نبی نے کیا فرمایا، پھر صحابہ کرام نے کیا کہا. تو صرف اور صرف اس وقت ہمیں یہ فیلنگ حاصل ہوگی کہ جب ہمیں عربی جو ہے وہ آئے گی، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں عربی نہیں آتی تو اب آپ یہ سوچیں کہ حدیث مبارکہ میں ایسا مزہ ہے اور ایسی تاثیر ہے، تو قرآن میں کیا تاثیر اور مزہ ہوگا. قرآن کی زبان جب ہم خود سمجھ لیں گے اور سیکھ لیں گے تو پھر اس میں کیا کیا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے یہاں پر اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے. اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ارزقنی تلاوتا وانا اللیلی وانا النہاری وجعلہ لی یا حجتین یا رب العالمین. یا اللہ پاک قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف نہ بنا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما کہ اللہ پاک کہیں کہ ان لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ فرما کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ ان لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے یہاں اکٹھا ہونا بھی قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی اس کتاب کا جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کم سے کم ہم جو ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. ہم اس کا پورا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہم کوشش تو کریں اپنی طرف سے، جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی ان سیشنز کے درمیان جو بھی غلطی کمی بیشی ہے وہ سب میری طرف سے ہے، اینڈ آئی سیک فارگیونیس فرام اللہ سبحانہ و تعالی فار اٹ. اور کوئی بھی آپ کو ذرا برابر بھی نفع پہنچا ہو تو اٹ از ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی روشنی کو روشن کریں اور اس کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.